નમસ્કાર. આજે ફરી એકવાર રૂબરૂ મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનની ગુરુવારી મિટિંગમાં આપણી રૂબરૂ મિટિંગ પણ આપ સૌ ફેસબુક ઉપર જોઈ શકો, જે પહોંચી નથી શકતા એમને માટે, એટલે ફેસબુક લાઈવ પણ સાથે સાથે ગયા ગુરુવારે પ્રકાશભાઈએ હાજર રહીને સાંપ્રત પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી હતી અને ખાસ કરીને રાજદ્રોહના ગુના અને એને લઈને સર્વોચ્ચ અદાલતનો જે ચુકાદો આવ્યો હતો એના સંદર્ભમાં, અને ખાસ કરીને કોમવાદીકરણ જે રીતે દેશમાં એક કોમવાદી માહોલ, તંગદિલી અને એના સંદર્ભમાં એમણે વાત કરી હતી. આજે એ વાતને આગળ ચલાવીશું અને આજે આપણી સાથે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના સેક્રેટરી દ્વારિકાનાથ રથ છે. એ વાત કરશે અને એ વાત કરશે ભાઈચારા માટે નાગરિકોની પહેલની, સિટીઝન્સ ઇનિશિયેટિવ ફોર ફ્રેટર્નિટી. ભાઈચારો આપણે બધા જ લોકો, સાધારણ લોકો, ભારત દેશના સાધારણ લોકો સદીઓથી સાથે રહીને બધા વિવિધ ધર્મો, વિવિધ ઓળખાણો, વિવિધ પરિચયો અને પ્રવાસીઓ આવ્યા, રોકાઈ ગયા, ભારતીય બની ગયા. અંગ્રેજ સલ્તનત એટલે કે અંગ્રેજ સામ્રાજ્યવાદના સમયને બાદ કરતાં જે પણ લોકો ભારતમાં આવ્યા એ ભારતીય બની ગયા, ભારતમાં વસી ગયા અને ભારતના જે લોકો હતા એ એમની પાસેથી શીખ્યા અને એ લોકો પણ ભારતની પરંપરા અને ભારતીય સભ્યતામાંથી શીખ્યા અને એક ભારતીય સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ એ રીતે સમૃદ્ધ બની અને આગળ વધી. અને આ જ ભારતમાં જે વિવિધતામાં એકતા જે આપણે કહીએ છીએ, આટલી બધી વિવિધતા, આટલી બધી વિવિધ ઓળખાણો કદાચ બીજા કોઈ દેશ પાસે નથી અને છતાં પણ એને ભારતીય સભ્યતા, ભારતીય સંસ્કૃતિ એટલા માટે કહી શકીએ છીએ કે આ વિવિધ ઓળખાણો એકબીજામાં એવી રીતે હળી મળી ગઈ છે કે એની છૂટી પાડી શકાય એવી નથી. અને આ ભાઈચારાની જે વાત છે, જે આઝાદી ચળવળમાં પણ એક મૂળ સૂત્ર હતું અથવા મૂળ મુદ્દો પણ હતો કે આ ભાઈચારાની સાથે આ અંગ્રેજ સામ્રાજ્યવાદ સામે લડતની વાત હતી, એની સામે મુક્તિની વાત હતી. એ વાતને આજે આગળ લઈ જતા દ્વારિકાનાથ રથ વાત કરશે ભાઈચારા માટે નાગરિકોની પહેલની. હું એમને વિનંતી કરું છું કે આજે આ વિષય વિશે આપણી સાથે ચર્ચા કરે. દ્વારિકાનાથ રથ. નમસ્કાર. મેં મીનાક્ષીબેન બોલે આ રીતે નાગરિક પહેલ, ગંગા જમના જમની તહેજીબ, કે આપણે ગુજરાતમાં કહીએ કે બસંત રજબ તહેજીબ, બસંત રજબનો ધારા. મને લાગે છે કે ફેસબુકમાં લાઈવ છે, યુટ્યુબમાં લોકો પણ થોડુંક પછી જોનારા માણસો હોય છે. હું થોડું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરું તો કદાચ થોડા એ લોકો માટે પણ સરળ પડશે. બધા જ્યારે मैं बात करवा जा ही रहा છું, जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो मन में आशा, निराशा, क्या करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, क्यों हम बिल्कुल आज एक निर्जीव या पैरालाइज जैसे हो गए हैं. ये मन में हजार प्रकार का सवाल आता है. क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अब ये बच्चे जो हैं, 14 साल 15 साल के बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में जा रहे हैं, वो अभी क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या जान रहे हैं? हमने तो जो उम्र वाले जो है, हमने तो देखा, सहन भी किया, सहन अभी कर भी रहे हैं और हमारी वक्त शायद अभी जा रहा है रॉन्ग साइड ऑफ द एज टाइम. तो यंग जनरेशन जो है वो क्या हो रहा है? आपने सुना होगा कि ये एमएस यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स में एक घटना पहले हुई थी. फाइन आर्ट्स में पेंटिंग को लेकर हुआ था. इस बार फाइन आर्ट्स का एग्जामिनेशन था. एग्जामिनेशन हॉल में इन लोगों ने डिस्प्ले किया था, उसको देखकर मार्किंग देने की बात थी.
एक लड़का ने उसी अपनी रिमार्क से जो आया उसने अपना पेंटिंग प्लेस किया था, उसको मार्क मिलना था जो 0 या 30 या 40 या फेल या पास, वो मास्टर लोग डिसाइड करने वाले थे। तो मास्टर लोगों को डिसाइड करने से पहले ही एग्जामिनेशन हॉल से वो पेंटिंग वायरल हो गया और लगा कि ये हिंदू देवताओं का इंसल्ट करते हुए किया हुआ है। और एक टोला आ गया, और टोला आ जाने के बाद जो टोला सही होता है वो सबको मालूम है कैसे होता है, क्या होता है। और ये जो एग्जामिनेशन था, और एग्जामिनेशन का पेपर का तपास भी नहीं हुआ क्योंकि इन्वेजन ऑफ द टोला सही हुआ, अंदर आ गए। फिर बाद में वो लड़का ने जो 4-5 पेंटिंग किए हुए थे, कोलाज किया था, न्यूज़पेपर कोटिंग का कोलाज किया था, उसको रस्टिकेट कर दिया गया। रस्टिकेट मतलब कैरियर बर्बाद। मार्किंग की बात नहीं है। अगर फिजिक्स के एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो क्या टोला आके डिसाइड कर सकता है क्या कि इसमें H2O है या नहीं? तो क्या टोला आके कोई एक क्राउड आके इसको डिसाइड करेगा क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया नहीं जाएगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन अभी हाल कुछ दिन पहले ही हमारे गुजरात में ये हुआ, बड़ौदा में हुआ। बड़ा अजीब बात है। उसे कुछ साल पहले वो शिवजी पनकर और चंद्रमोहन इन सब का हुआ था, उसको लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ था। अभी तो कॉलेजों में शायद अभी गर्मी भी है, स्टूडेंट्स अभी थोड़ा घर जाने की तैयारी में हैं। ये एक मायूसी की वातावरण तैयार किया। ऐसे छोटे मोटे घटनाएं बहुत होती है। कुछ दिन पहले गुजरात में खंबात में हुआ, एक टीम गई हुई थी, वो टीम के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जामनगर में हुआ, द्वारका में हुआ, हिम्मतनगर में भी हुआ। और एक बात है कि एक ईद की माहौल जो है, हर धर्म के लिए एक धर्म के माहौल भी बनता है। ईद का है, हिंदुओं का जन्माष्टमी होता है, शिवरात्रि होता है, दिवाली होता है, सब धर्म का एक एक माहौल बनता है। मुसलमानों के लिए ईद का होता है। तो उसी समय पर जिस तरह वातावरण सारा देश में चला, रामनवमी, हनुमान जयंती, ईद के समय में, बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है। और इसमें जो बड़े बड़े जो नेता एस्पिरेंट जो हैं, आने वाले दिनों में एमपी के लिए, एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे, मंत्री बनेंगे, जिस आगे आकर इसको पहल करने के लिए कोशिश की और तनाव को फैलाने के लिए भी कोशिश की, और मीडिया भी जैसे अटेंशन दिया, ये बढ़ता गया। हनुमान जयंती में भी हुआ, रामनवमी में भी हुआ, और ईद भी ठीक से भी ये लोग मना पाए कि नहीं मना पाए, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। आजकल तो एक प्रकार फैशन बन गया है, स्कूल कॉलेज में किसको छुट्टी देना है, छुट्टी नहीं देना है। जैसे मान लीजिए पहले मुझे याद है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, क्रिसमस के टाइम पे छुट्टी होती थी 7-8 दिन। तो वो 7-8 दिन हमारा एजुकेशन का कुछ एक्सकर्सन कुछ होता था, उसी टाइम पे हम लोग जाते थे। लेकिन आजकल एक्समस हॉलीडे जनरली बंद कर दिया गया, ऊपर लंबा मिनी वेकेशन कहा जाता था, वो बंद कर दिया गया। फिर अभी जो सुनने को मिलता है, स्टूडेंट के अंदर में बातें होती है कि गणेश पूजा है, सरस्वती पूजा है, परशुराम जयंती है, इन सब की छुट्टी मिलती है, तो ईद का क्यों नहीं मिलता, छुट्टी क्यों नहीं मिलता? ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल का तो छुट्टी तो शायद नहीं मिलना चाहिए, अगर सेकुलर स्टेट अगर है तो जो बच्चों के मन में ये सवाल आती है। तो ये प्रकार का वातावरण एक प्रकार का बन रहा है, और स्टूडेंट्स और यूथ जो हैं वो कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। उनको कैसे रिएक्ट करना है, नहीं रिएक्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली जो स्कूलों में जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके अंदर भाईचारा कैसे रहे, ये काम तो टीचर का होता है।
टीचर लोग करते हैं। टीचर लोग कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हम सिटीजन्स जो हैं, तो हमारा रोल क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए? अंदर से देखेंगे क्या रोज के रोते तो कभी तूफान तो बनेगा नहीं, लोग तो रोक मरेंगे नहीं। लोग कम बात को समझते हैं कि कोई मारामारी हुआ, थोड़ा तोड़म फोड़ हुआ, आग लगा दिया गया, कुछ आदमी मर गए, रेप हो गया, तो उसको बड़े पैमाने पर रेप, इसको बड़े पैमाने पर राइट्स को भी दावा नल कहते हैं। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होगा, हर रोज नहीं होगा, कुछ दिन के लिए फिर बंद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में अंदर में एक बात के बारे में एक जो सड़कती हवा जो कहते हैं, सड़कती हवा मतलब जो बर्निंग फायर जो है, वो अंदर वो सबको छूता रहेगा। एक अनकंफर्टेबल कामनेस या अनकंफर्टेबल जो अगर बाद में बैठे हुए हैं तो बातचीत नहीं होना। जैसे लोग एरोप्लेन में जाते हैं, लोग बातचीत नहीं करते आजकल, लोग जब ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लोग मोबाइल में ही बातचीत करते हैं। पास में घर में भी हैं या कॉलेज में भी हैं या स्कूल में भी हैं, तो लोग मोबाइल खोल के बैठते हैं और अपने बीच में कोई बातचीत नहीं होता। पहले तो लोग बस में ट्रेन में जाते थे, भाई साहब बड़ा गर्मी लग रहा है, नहीं तो गर्मी नहीं लग रहा है, उसी से शुरू होता था बातचीत, और कहाँ तक पहुँचता था जब जाने के टाइम पे चाय का आदान प्रदान हो जाता, वो पता नहीं था उसका नाम क्या है। जब एक दूसरे को बिछड़ रहे हैं तब आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, हम फिर मिलेंगे। कभी ट्रेन के मुसाफिर फिर तो मिलते नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे प्रकार का माहौल ट्रेन जर्नी में होता था। आजकल ये जनरली ये मोबाइल आने के बाद ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में कि एक जो स्टूडेंट्स के अंदर में भी जो भाईचारा भी जो बात है, अभी तो रिलीजन का तो एक बड़ा जैसा एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है, और उसके साथ कास्ट भी आ गया है, रिलीजन भी आ गया, कास्ट भी आ गया, दोनों साथ साथ में लेकर एक प्रकार पोलराइजेशन अमंग द स्टूडेंट्स और यूथ, और ये हो जाता है। और इसमें अपॉइंटमेंट के बारे से लेकर, नौकरी से लेकर, अपॉइंटमेंट से लेकर और काफी दूर तक भी ये रिलीजन और कास्ट डिसाइड करता है। तो ऐसी स्थिति पर सिटीजन्स क्या करें, व्हाट विल दे डू व्हेन सच सिचुएशन इज अराइजिंग। हम ये जो आज बात कर रहे हैं ना, इसका नाम हमने दिया है कि जो गंगा जमुनी जो तहजीब, गंगा जमुना धारा से मिलते हैं तहजीब जो है, गुजरात में एक परंपरा है बसंत रजब तहजीब, बसंत रजब दो आइकन ऑफ कम्युनल हैरोमनी जो था 1946 में कम्युनल हैरोमनी के लिए उन्होंने जान दिया। ऐसी घटना शायद बहुत कम है भारत में, और गुजरात के लोग भी जानते हैं, लेकिन गुजरात से बाहर के लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो 1 जुलाई को उनका दिन आ रहा है, उसी दिन हम लोग एक प्रोग्राम करने जाएंगे, एक सम्मेलन, सब लोग मिलेंगे, और उसी टाइम पे उनकी जो प्रकाश भाई शाह हमारे जो कन्वीनर जो है, उन्होंने किताब लिखा था आज से 10 साल पहले, वो किताब को फिर से उन्मोचन, वो ख़त्म हो चुका है, फिर से इसको पुनर्मुद्रण किया जाएगा, इसको उन्मोचन भी किया जाएगा, एक नागरिक सम्मेलन होगा। लेकिन इस सम्मेलन से पहले हम आने वाले गुरुवार में, आज जो थर्सडे बैठे हुए हैं, आने वाले गुरुवार में हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में जो सिटीजन्स जो हैं उनके साथ में एक चर्चा हो, और ये हमारे अंदर में क्या चर्चा होनी चाहिए, किस चीज़ को फेस करना चाहिए, किस चीज़ को, मामले को हमको लोगों को बाद में ये जो मुंझमन जो है, मुंझमन मतलब जो प्रकार का कन्फ्यूजन जो है, उसको आंसर करना चाहिए, और ख़ास करके जो यंग जनरेशन के साथ में कैसे हमारी वो इंटरेक्शन होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये नागरिक जो का जो पहल जो है, नागरिक पहल, हम एज ए सीनियर पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी और द सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी, सिटीजनशिप तो नहीं था पहले, राजाशाही में सिटीजनशिप नहीं था। जब राजाशाही गया, डेमोक्रेसी जब आया, तभी सिटीजन आए एज ए सिटीजन। जब वोट दे के मैं इलेक्ट किया एज ए सिटीजन, आई इलेक्टेड ए गवर्नमेंट, तो वही तभी सिटीजन्स आया। तो सिटीजन्स बना तो मेरी कुछ, जब मैंने वोट दे के मैंने किसी को चुना और उसको इलेक्ट किया, गवर्नमेंट बना, तो वो सिटीजन्स का एक बनता है, ये राइट या रॉन्ग, मैंने जिसको इलेक्ट किया वो राइट है या रॉन्ग है, तो सिटीजन्स के वॉइस है। तो सिटीजन्स रोल कभी भी खत्म नहीं होता है।
गवर्नमेंट अगर इलेक्ट हो गया या नहीं हुआ, लेकिन सिटीजन्स का रोल खत्म नहीं होता है। जो चलता है चलेगा, देखेंगे 5 साल के बाद देखेंगे, नहीं। सिटीजन्स तो वॉच डॉग, सिटीजन वॉच डॉग है, सिटीजन्स टीचर्स हैं, सिटीजन्स जिनको देखते हैं कि बराबर ये समाज जो है ठीक ठाक न्याय से, मोरल से, इथिक्स से, कल्चरल इंटीग्रिटी से, कंपोजिट कल्चर के साथ चलती है नहीं चलती है। और ये एक वास्तव के सिटीजन्स को ही जो सरकार में होगा, जो भी जहां भी होगा, वो उसको डरेगा। सिटीजन सरकार से नहीं डरेगा, सिटीजन किसी को डरेगा नहीं। ये सिटीजन की काम होती है। सिटीजन्स को वो ताकत होनी चाहिए। यू आर रॉन्ग, इफ आई एम द, अगर मैं माइनॉरिटी भी में हूं, विचार में भी अगर मैं लघुमती में हूं, विचार में अगर मैं, तो भी मैं राइट हो सकता हूं, मेरी बात सुनना पड़ेगा। यही बात है, यही हम लोग को सिखाया गया, हम सीखे हैं, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी आज एक प्रकार का अलग रूप ले रहा है, मोबोक्रेसी या कोमोक्रेसी या कुछ भी आप नाम दे दें, अभी प्रकार का जो थोड़ा सही ही एक डेमोक्रेसी का एक पोजीशन ले चुका है। और इलेक्शन बाद होता है, 50 रुपये के एलपीजी गैस बढ़ भी जाए तो क्या होगा, हमने लोग को तोड़ के रख दिया है, लोग तो रास्ते पर आएंगे नहीं। अगर ये जो भाव के बढ़ाने, इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ गया तो क्या हो गया, हम लोग तो रास्ते पे आएंगे नहीं। ये कॉन्फिडेंस सरकार का है कि लोगों का इतना तोड़ा हुआ है कि लोग सामने आएंगे नहीं। तो इसी समय पर हम कैसे स्टूडेंट्स के बीच में, यंगस्टर के बीच में, उनकी मन में बहुत सवाल आते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस। कितनी घटना हुई, आपको देखा होगा आपने, ये इतना कमी रमखान होने के बाद एनआरसी का, बाद में सीए का मूवमेंट में किसान आंदोलन भी हुआ, ये सब हुआ। और किसान आंदोलन में भी दिखा काफी रिलीजन के लोग, इवन जो मुस्लिम लोग भी वहां भी खड़े होकर भी रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा भी हमने देखा काफी जगह में कि जो हिंदू आदमी मर गया है, कोई रिलेटिव नहीं है, मुस्लिम लोगों ने उसी टाइम पे उठाकर इसको उसे जलाने स्मशान तक भी ले गए हैं। ये कश्मीर में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। और ऐसे भी सुनने को मिला है, घटना है, पेपर में भी आता है, ये पेपर छोटे छोटे पेपर में आता है कि हिंदू आदमी मर गया, इसके घर में कोई था नहीं, तो मुसलमान ने अपनी दाढ़ी मुझ कटवा करके और हिंदू विधि से इसको अग्नि संस्कार दहन किया। ये भी घटनाएं भारत में, इतने घटना होने के बाद भी ऐसे घटनाएं भी हैं। और ऐसे घटनाएं भी हैं हिंदुओं भी, मुसलमानों को भी किस तरह से वो बाद में जो बच्चा कोई छोड़ गया, बच्चा माँ बाप मर गए, उसको लेना, उसको पालना, उसको पढ़ाना, इसको शादी करवाना, अपनी उसी कौम में शादी करवाना, ये कहानी आपको जगह जगह मिलेगी। आप ये जो बात है हमने नहीं बनाया। हिंदू और मुसलमानों की एक मिलन, हिंदू मुसलमान, हिंदू बुद्ध, हिंदू जैन, हिंदू सिख, ये सब धर्म को लेकर भी एक जिसको सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो है सारा भारत में हर जगह में, हर राज्य में पड़ा हुआ है। गुजरात में पिराना में है, गुजरात में हमारे यहाँ जो लेक है ये जुहापुरा में सरखेज रोजा जो है, वो भी एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन का ही एक प्रोडक्ट है। ऐसे ही आप जाएंगे तो सारे सौराष्ट्र में जाएंगे, कहीं जमीन के पास में सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, वहाँ पीर कल्चर जो कहते हैं, सत्य पीर का जो कल्चर होता है। और हर अनपढ़ एरिया में भी, गांव में भी ये सब पड़ा हुआ है। ये सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस सारा भारत में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र में, उड़ीसा में, बंगाल में हर तरह का एक सेलिब्रेट लोग करते हैं, इकट्ठा होते हैं। एक हाजी पीर का कच्छ में है, वहाँ लोग हिंदू मुसलमान सबके सब लोग जाते हैं, वहाँ जाके पूजा पाठ भी करते हैं, वहाँ जाके कव्वाली भी होता है, भजन कीर्तन भी होता है, डायरा भी होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप चाहे या ना चाहो, आप हम चाहे या ना चाहे, लेकिन लोग तो लोअर लेवल में, गांव की लेवल में, जो गली के लेवल में, वो तो मिलते जुलते हैं और बाद में एक अपनी बीच में शेयर भी करते रहते हैं। और ये कंप्लीटली खेडूत, जो गरीब किसान मजदूर, वही लोग हैं। और ये जो मिडिल क्लास लोगों के अंदर जो प्रकार का कंफ्यूजन जो है, आपको वो कंफ्यूजन अगर बात करेंगे, नहीं हम तो बरसों से साथ में रहते हैं, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी साथ में ईद मनाते हैं, वही गणेश चतुर्थी भी साथ में मनाते हैं, वो भी दिवाली भी करते हैं बाद में, और सब कुछ मिल के भी करते हैं। लेकिन कभी कभी जो इलेक्शन का माहौल बन जाता है, पार्टी का जब हो जाता है, तब कुछ तनाव
फैलता है। लेकिन अभी भी ये जो हाजी पीर में हम जो देखते हैं, पिराना में हम जो देखते हैं, और बाकी बंगाल में, उड़ीसा में सत्य पीर का पूजा जो होता है, महाराष्ट्र में जो है हजारों जो प्रकार सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस का जो पीर का दरगाह में लोग इकट्ठे होते हैं, टाइम पे होते हैं। कोई हिंदू का मंदिर को मुसलमान देखता है, मुसलमान को मस्जिद को हिंदू देखता है। ये भी किस्सा आपको मिलेगा। ये भरपूर है सब चीज। खल सब टूट गया, सब खत्म हो गया है, बिखर गए मोती, वो प्रदीप गाना जो सब बिखर गए मोती, ये जो ऐसा नहीं हुआ है। एक तहजीब है, एक प्रकार का मिलन है, एक परंपरा है। वो परंपरा को हमको पुनर्जागरण कर, इसको क्या करना, उजागर करना पड़ेगा। वो परंपरा को दिखाना पड़ेगा, भाई ये हमारे अंदर में पड़ा हुआ है। बिकॉज वी आर मैन, हम मैन हैं। भले कोई धर्म के हम मानते हैं, किसी जात पात को हम हो, लेकिन हम धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो ये बात को अगर हम यंग जनरेशन के पास में ले जाए, और उनके प्रकार का जो टूर होता है, जो हेरिटेज टूर या रिलीजियस टूर, या आप कहिए कि ये जो डिफरेंट जो आप ले गए टीचर लोग ले जाते हैं, बड़े बड़े जगह में ले जाते, शिमला ले गए, होटल में रखते हैं, इतना खर्चा होता है, फ्लाइट का चार्ज इतना है, एसी का चार्ज इतना है। अगर ये लोग अगर ये सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की जो जगह जो है वहां अगर ले जाके समझाए कि ऐसे ऐसे लोगों के बीच में संबंध है, इसका स्टोरी जो है बताते, तो कैसा अच्छा होता। तो ये जो बात है, ऐसे ही मानो कि हमारा जो ये आजादी लड़ाई में आपने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल के जो साथ से काम करते असफुल्ला, जो उनका जो ये जो उनकी जीवनी पढ़ेंगे असफुल्ला का, किस तरह से इंस्पायर्ड होते राम प्रसाद बिस्मिल से। तो ये जब देखेंगे कि कैसे हमारे मित्रता कैसी थी, मतलब आजादी लड़ाई में भी कैसे ये जो विजय बसंत रजब किस तरह से अपने आप को आजादी लड़ाई में जुड़े, अपने सारे कैरियर को छोड़ा, और कैसे ये कौमी एकता के लिए 46 में भारत पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ, उसको लेकर जो कौमी रोम खान जो अहमदाबाद में हुआ, उसके लिए कैसे अपने जान देने के लिए भी तैयार हो गए। ये कहानियां जो है ये स्टूडेंट्स के बीच में जाना चाहिए। ये बात भी हमारे देश में है कि बहुत सारे जो ये हैं कि मोहम्मद रफी के नाम सुना होगा, अभी भी गुजर गए, उन्होंने कितने भजन गाए, मुस्लिम है, गाए कितना भजन। हमारे देश में कितने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां है, करीम खां है, कितने क्लासिकल सिंगर्स हैं। अब देखेंगे आप ये अलाउद्दीन खां है, इनके जो लड़का अली अकबर खां भी हैं। तो इतने सारे लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आज तक भी उन्होंने परंपरा को जारी रखा है। कितने सारे लोग हैं जो आज तक उन्होंने इसको जो कहते हैं कि प्लीज जो ना, आज तक कितने सारे लोग हैं जो कि इन क्लासिकल म्यूजिक हो या पेंटिंग्स हो, ये सारे चीज को डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, नौशाद आपको नाम सुने होंगे। अगर आप देखेंगे, अगर लता मंगेशकर गाने के पीछे अगर लिरिक्स हैं, वो लिरिक्स किसने लिखे हुए हैं? सो मेनी मुस्लिम्स, सो मेनी मुस्लिम, मे बी मुस्लिम बाई नेम, लेकिन हिंदी फिल्म में कोई ये केयर करता नहीं है कौन गाया था, कौन लिखा था। गाया बहुत अच्छा गाया, लेकिन जो गाए किसने लिखा, लिखा इन लोगों ने लिखी। तो ये हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रकार एकता तो बहुत अजीब सुंदर है, बहुत सुंदर ट्रेडिशंस है। हमारे क्रिकेट के टीम में, हॉकी के टीम में भी ये चीज कभी भी नहीं था। लोग मिलकर भी खेलते थे, इंडिया के विक्ट्री के लिए भी खेलते थे। अगर कभी कभी ऐसा होता था कि किसको ड्रॉप करना, ड्रॉप नहीं करना, तो कुछ ऊपर वालों का, सिलेक्शन वालों का प्रॉब्लम है। लेकिन ये जब इंडिया का, इंडिया जो खेलते हैं, नवाब पटौदी जब कैप्टन जो थे, दे आर ऑल प्लेइंग टू विन, दे आर ऑल प्लेइंग टू स्कोर। तो इंडिया का प्राइड बनाने के लिए कोशिश करते। इनरुर रहमान के हॉकी प्लेयर थे, वो बड़े हॉकी प्लेयर थे, वर्ल्ड फेमस हॉकी प्लेयर। तो ये लोग को जो ये एक इंडिया को प्राउड करने की कोशिश करते थे। तो यही तो एक कंपोजिट कल्चर की एक प्रकार निशानी है। तो ये कंपोजिट कल्चर हमारे अंदर में है। ये कंपोजिट कल्चर को लोगों को बताना, उनको दिखाना, उसके बारे में कल्टीवेट करने के लिए कोशिश करना, ये बहुत जरूरी अभी हो चुका है। क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी संगीत संध्या भी कर सकते हैं, कभी कव्वाली भी कर सकते हैं, कभी चेस टूर्नामेंट भी कर सकते हैं, कभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी कर सकते हैं, कभी क्विज भी कर सकते हैं, छोटा मोटा क्विज भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट के बीच में, और भी आज़ादी कहानी भी बता सकते हैं, उनके इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे बात को ये स्टूडेंट्स और यंगस्टर के बीच में हमको जाना पड़ेगा। खाली हाँ में
हम जान लिए, राइट हो गया, स्टेटमेंट कर दिया, कुछ प्रोग्राम कर दिया, ये जाने वाला ये जो जहर जो है वो कोविड से भी बड़ा डेंजरस है। ये तो कुछ लोगों को जान लिया है, सब कुछ हम लैक्स को लिया है, करोड़ों का जान ले चुका है और करोड़ों का जान लेकर रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगर यूथ अगर इसको ये बात को समझे कि ये हमारा अगर होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बात है कि पहले कि जब बॉम्बे में हुआ राइट हुआ उस टाइम पे तीस्ता बहन वगैरह सब थे, तीस्ता शतलवाद वगैरह, और ये भी जो थे जो पुलिस के चीफ थे, क्या नाम उनका, रिवेरो, ये लोग मोहल्ला कमेटी बनाते थे, मोहल्ला कमेटी बनाते थे ताकि सब जब भी होगा मोहल्ले वाले मिलते थे, और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हैं तो रात भर जाग के उसको वो पहरा करते थे लोग। मोहल्ला कमेटी होता था, महिला में सेलिब्रेट करना, दिवाली है, नवरात्रि है, ईद है और रमजान है, जो भी मोहल्ला मिलना, ये एक प्रकार का मोहल्ला कमेटी फिर से उन्होंने रिवाइव किया है। क्या हम ऐसे चीज को, मोहल्ले कमेटी वगैरह चीज को क्या हम बना सकते हैं? हम क्या सब इस चीज का कोशिश कर सकते हैं? तो ये चीज हमको देखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये स्टूडेंट्स के बीच में, यंगस्टर के बीच में ये बात को ले जाने के लिए हमें एक प्रकार का एक कार्यक्रम लेने के लिए सोच रहे हैं, और ये आने वाले गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस करने की बात है। और ये जगह का है वो आवाज कुंज बुदरपुरा, वहाँ होगा। तो ये बहुत ही एक संवेदनशील बात है। मैं खाली इतना अनाउंस कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली कौमी एकता का इतिहास बताना, एक मल्टी कंपोजिट कल्चर की बात करना, मूल जो बात है कि हमको क्या हमने सेकुलरिज्म का बात हम ऐसे ही बोल देते हैं क्या? सचमुच हम सेकुलरिज्म को समझे हैं क्या? हम हम जो सिटीजन्स वगैरह हैं, हम क्या इसको समझे हैं क्या? स्टूडेंट्स या टीचर्स से जानते हैं सेकुलरिज्म क्या है? अगर सेकुलरिज्म क्या जानते तो बाद में तो एजुकेशन के अंदर में तो रिलीजन और एजुकेशन को सेपरेट रखते। सरकार वाले रखना नहीं चाहता है, लेकिन टीचर प्रिंसिपल तो कर ही सकते हैं, वो प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, सेकुलराइजेशन जो कहते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन सेकुलर एजुकेशन, जो सेकुलरिज्म की बात है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद एजुकेशन, सेपरेशन ऑफ स्टेट विथ पॉलिटिक्स, कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई एमएलए हो या कोई एमपी हो, लेकिन उनके साथ में जब मंत्री बन कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं उसके बाद वो रिलीजन को स्थान नहीं देंगे। तो हमारे देश में सेकुलर फैक्टर नहीं है। तो ये सेकुलर फैक्टर नहीं होने के कारण भी हमने भी गैर समझ अपने चीजों को ठीक से समझा नहीं। जो हमको समझाना जरूरी है वो है कि सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं है कि बिन सांप्रदायिकतावाद, मतलब क्या उसका है कि समधर्म समभाव, वो नहीं। सब धर्म समभाव या कल्चर में आएगा, प्रैक्टिस में करेंगे, लेकिन इक्वल जो स्टेट जो होगा, हमारा स्टेट जो होगा, स्टेट शुड बी रिलीजियसली न्यूट्रल। जो मेजोरिटी जो रिलीजन जो है उसका डोमिनेशन नहीं होगा। ये अगर हम कोई कंसेप्ट के हिसाब से आएगा, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के हिसाब से आएगा, तो बाद में एज सिटीजन्स वी कैन एसेट इट, और एज सिटीजन्स हम स्टूडेंट्स को और टीचर जो लेक्चरर हमारे बीच में है उनको हम कह सकते हैं कि ये बात आप इसको इंसिस्ट करके बताने की कोशिश करें। और भी बहुत सारे हम स्टेप ले सकते हैं, गाना कंपटीशन करवाना, साथ में गाना गाना, कबड्डी खेलना, ये भी कर सकते हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन कर सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं। हम लोगों ने एमएसडी में आज से बहुत साल पहले, 20 साल पहले, हमारे दिलीप भाई चंदूलाल जो यहाँ थे, उन्होंने एक लायंस क्लब वस्त्रापुर का गवर्नर बने हुए थे, उन्होंने 5,000 रुपया हमको उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था। उसी में से हमने काफ़ी हमने कंपटीशन किया था, सारा ऑल गुजरात लेवल का कंपटीशन किया था। वो कंपटीशंस में ऐसे कंपटीशन था स्कूल का, कॉलेज का, हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज और ये इंग्लिश लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज का था। बाद में पोइट्री कंपटीशन था, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन भी था, गजल का भी लिखने का कंपटीशन भी था। बहुत सारे कंपटीशन 5,000 रुपया में करने हम लोगों ने, अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी 5,000 रुपया में बहुत सारे हमने कंपटीशन किए थे। लगभग 700-800 स्टूडेंट्स उस जमाने में, ये जो बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद, अप टू 700 to 800 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे।
और बहुत सारे नामी लोग अभी भी अभी आपको देखेंगे छापे में पत्रकार है, कोई ना कोई कुछ है, कुछ इम्पैक्ट पड़ा। तो अभी भी हम सोचते हैं कि ये प्रकार का जो कंपटीशन वगैरह जो है स्टूडेंट के अंदर में कंपटीशन कर सकते हैं, कभी कभी क्विज कंपटीशन भी हम कर सकते हैं, हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में कर सकते हैं, हम साइंस के बारे में भी कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो ये नागरिक पहल को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल इतना ही कहना है, हम क्या कर सकते हैं और ये करके कैसे एक प्रकार का जो सड़कती हवा जो है, कम्बात का हवा जो है, ये हवा को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमारा एक अपनी प्रयत्न होनी चाहिए और इसीलिए वो आने वाले तारीख 26 तारीख है। 26 तारीख आप लोग जरूर आए, आप लोग मित्रों को भी लेके आए, आप थोड़ा सोच के भी आए और उसके साथ में एक एटमॉस्फेयर बने। फिर बाद में जुलाई 1 को एक महासम्मेलन, लगभग 1 जुलाई को रथ यात्रा भी है और बसंत रजब का शहादत दिन भी है। तो उसी दिन में शायद हम अगर रथ यात्रा के कारण परमिशन ना मिले तो शायद 30 तारीख को करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन बड़े हॉल में सारे गुजरात का जितने सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स, यूथ भी है, उनको लेकर एक सम्मेलन करें, एक भाईचारा की बात को फिर से जारी रखें हम लोग, एक ब्रदरहुड फ्रेटरनाइजेशंस की बात हम रखें। इसीलिए आज की एक छोटी सी आज बात बोलने के लिए आज हम लोगों ने इकट्ठा हुए हैं। बस इतना कहकर मैं मेरी बात पूरा करता हूँ। नमस्कार।